Assalamu alaikum, welcome to my channel C Sharp Tutorials. Today we will learn about syntax. आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है जी, C Sharp बेसिक syntax के बारे में हम पढ़ेंगे कि syntax होती क्या है, लिखते कैसे हैं। तो ये सारी जो है चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। C Sharp इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो C Sharp लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। In object-oriented programming methodology, a program consists of various objects that interact with each other by means of action. इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है जो कि आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं एक्शंस के मुताबिक। The actions that an object may take are called methods. जो एक्शन ऑब्जेक्ट करता है वो मेथड भी कहलाता है। Objects of the same kind are set to have the same type are said to be in the same class. ठीक है जी, अगर सेम काइंड के ऑब्जेक्ट्स है तो वो सेम क्लास के अंदर होंगे, ठीक है, या सेम टाइप के होंगे। For example, let us consider a rectangle object. It has attributes such as length and width. Depending upon the design, it may need ways for accepting the values of these attributes, calculating the area and displaying details. ठीक है जी, यहाँ पर हमें एक प्रोग्राम दिया गया है रेक्टेंगल का। तो ये जो है यहाँ पर प्रोग्राम पूरा होता है, ठीक है। When the above code is compiled and executed, it produces the following result. जब प्रोग्राम बनता है तो एक उसका रिजल्ट मिलता है। अब इस पे आता है द यूजिंग कीवर्ड। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन एनी सी शार्प प्रोग्राम इज द यूजिंग कीवर्ड is used for including the namespace in the program. A program can include multiple using statement. यूजिंग जो है इसके बारे में हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप हमारी जो है वीडियोस देख सकते हैं स्टार्टिंग की, ठीक है जी, ताकि आप जो है एक तरतीब के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। इसके बाद आ जाता है जी द क्लास वर्ड। द क्लास कीवर्ड इज़ यूज फॉर डिक्लेयरिंग अ क्लास। जो क्लास वर्ड होता है, कीवर्ड होता है, दरअसल ये क्लास की डिक्लेरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद कमेंट्स इन सी शार्प। कमेंट्स आर यूज फॉर एक्सप्लेनिंग कोड। Compilers ignore the comment entries. The multiple comments in C sharp program starts with backslash star and terminates with the characters star backslash as shown below. Single line comments are indicated by the double slash, ठीक है जी। मेंबर वेरिएबल्स। अब मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स आर डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास यूज फॉर स्टोरिंग डाटा। In the preceding program, the rectangle class has two member variables named length and width. जो rectangle class होगी उसके अंदर दो वेरिएबल होंगे लेंथ और विड्थ के। उसके बाद मेंबर फंक्शन। फंक्शंस आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. The member functions of a class are declared within the class. Our simple sample class rectangle contains three member functions accept, detail, get area and display. उसके बाद है जी instantiating a class, ठीक है जी। instantiating a class in the preceding program, the class executable rectangle contains the main method and instantiates the rectangle class. Identifiers क्या होते हैं? Identifiers is a name used to identify a class, variable, function or any other user defined item. The basic rule for the basic rule for naming class in C sharp are as follows. तो यहाँ पर हमें कुछ रूल्स बताए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। A name must begin with a letter that could be followed by a sequence of letters digits 0 to 9 or underscore. The first character in an identifier cannot be a digit. It must not contain any embedded space or symbol such as, ये सिंबल हमें दिखाए गए हैं, ठीक है। However, an underscore can be used. अंडरस्कोर जो है वो यूज़ हो सकता है। It should not be a keyword. C कीवर्ड। आइडेंटिफायर जो है वो सी शार्प का कीवर्ड बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा और प्रोग्राम रन नहीं करेगा। उसके बाद आते हैं सी शार्प कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स predefined to the C sharp compiler. These keywords cannot be used as identifier. जो वही बात जो मैंने ऊपर कही कि आइडेंटिफायर जो है वो कीवर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, या कीवर्ड जो है वो आइडेंटिफायर के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। However, if you want to use these keywords as identifier, you may prefix the keyword with the @ character. अगर आपने कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको ऐड सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। तो आज की हमारी वीडियो
यहीं तक थी। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है रिजर्व कीवर्ड्स, यानी कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ से आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, ठीक है जी। तो हमारी जो वीडियो है वो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।